Now the next topic which we are going to start in model number 2, that is subsidiary books. Now we have to solve the practical for triple columnar cash book. We saw cash book acts as a ledger as well as a subsidiary book. So when it acts as a ledger, how the ledger account is prepared, and the cash book has a 3 columnar cash book. Earlier first columnar was only simple cash book. Second column 2 columnar 2 columnar cash book बोलोगे तो cash and the discount, and the 3 column में मिल गई cash account as well as bank account and the discount account. So if you prepare a 3 columnar cash book, it will be easy because in that you can record your cash transactions, you can record your discount allowed and discount received transactions, as well as you can record your bank transaction also. So when you prepare a triple column cash book which includes cash, discount and bank account, 3 column, so there is no need to prepare a separate bank account for that. So all work for the cash transaction as well as bank transaction वो cash book में ही आपका हो जाएगा. So it's always ideal to prepare a 3 columnar cash book, or you can say third type of cash book, that is triple column cash book. You can see over here is now here the transactions have been given and you have to prepare a triple column cash book. You can see it's like a normal ledger account, or you can say as a cash book account. The first column as usual is a date. The next will be the particulars where you mention the details of the transaction. The next column is a ledger folio which says the page number over which it's been put up. Next column, the first column will be discount allowed on the debit side. Why discount allowed on the debit side? Because discount allowed is my expense. Again, debit all expenses and losses. Discount allowed. Then the next column is cash account and the bank account. This is your debit side. Now come to the credit side. Same date, then particulars, then ledger folio. But here the discount will be discount received column because this is my credit. Credit means my income. Discount received is my income. Credit all income and gain. So this side, on credit side, it will be discount received, then cash and the bank. Understood? So debit part and the credit part, 3 columns. Discount allowed, cash or bank. Discount received, cash and a bank. This way 3 columns. See the first transaction what has been given on first October 13 का आपको transaction दिया है, 1 by 1 आपको date दिया है. So here also while recording, passing the entries in journal entry, or you can say in cash book, we will record date wise. See on the first, it has been given cash in hand of rupees 500. Now this is what cash in hand means. This is my opening balance. So on 1st of October, what is my opening balance? Now cash account is my asset. So it always has a debit balance. So you can see here over here is 2 balance brought down. When anything asset has a debit balance, it is always mentioned as a 2 balance brought down. In cash column, nothing in the discount allowed because discount is my nominal account. There is no balance. It is never it cannot be balanced. Understood? Because whatever the balance comes, that will be transferred to P&L account because it is my expense account. But cash is my asset account. So in cash column, I will mention rupees 500. In the same date, there is a different balance given cash at a bank of rupees 5000. So same line पे bank account में मैंने 5000 लिखा. So 2 balance brought down. Cash column में आया 500, bank column में आया 5000. Go on the date second. Paid check to rupees B. रुपीज 460 in full settlement of rupees 500. Now here clearly I can say कि मुझे B को कितना पे करना था 500. वो 500 का मैंने फुल सेटलमेंट कितने में किया 460 में किया. सो इट्स क्लियरली इम्प्लाइड कि मुझे यहाँ पे 500 की जगह पे मैंने 460 पे किया. दैट मीन्स देयर इज अ 40 रुपीज ऑफ डिस्काउंट विच आई हैव रिसीव्ड. बरोबर है. 500 की जगह पे मैंने 460 पे किया. डेफिनेटली मैंने कुछ कम पे किया तो मुझे डिस्काउंट मिला. So that is discount. So see over here. Now मैंने cash pay किया. That means my cash has gone. So the entry will come on the credit side. See on the second date by B. किसको पे किया मैंने? B को पे किया. So by B account नीचे I'll mention as check paid and discount received. Now discount received में जितना रुपीस का मुझे discount received मिला है वो. So 500 की जगह पे 460 किया. That means 40 रुपीस का मेरा डिस्काउंट हो गया. So 40 रुपीस डिस्काउंट रिसीव में कैश मैंने कुछ भी पे नहीं किया तो कैश में मैंने डैश किया हुआ है एंड आई हैव मेड द पेमेंट इन चेक. सो 460 का बैंक अकाउंट में आ गया. क्लियरली अंडरस्टूड? या. नेक्स्ट इज कैश सेल्स ऑन 3rd of October. देयर इज अ कैश सेल्स ऑफ रुपीज 2000. नाउ सेल्स हुआ है, कैश सेल्स हुआ मतलब कैश हैज कम. सो कैश अकाउंट डेबिट सिंपल यू कैन मेंशन ओवर देयर. सी ओवर हियर कैश अकाउंट डेबिट में आप देख सकते हो उधर 2 सेल्स. व्हाट इज बीइंग सोल्ड? सेल्स हुआ. सो 2 सेल्स कैश कॉलम. अभी उसमें ना डिस्काउंट का कुछ है ना मुझे बैंक से कुछ पैसा है. जो भी पैसा है वो कैश में. सो कैश कॉलम में मैंने 2000 लिखा है. उधर लिखा 2 सेल्स. कैश कॉलम में आपको 2. नाउ व्हेन यू प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, आपको सिर्फ ध्यान वही रखना है कि डिस्काउंट वाले कॉलम में मैं क्या लिख रही हूँ,
कैश वाले कॉलम में और बैंक। जो भी ट्रांजेक्शन दिया है वो कैश का ट्रांजेक्शन है, बैंक का ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट अलाउड का है, डिस्काउंट रिसीव का है, अकॉर्डिंगली वो कॉलम में वो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो टैली नहीं होगा, बैलेंस प्रॉपरली नहीं होगा। तो खाली ऊपर लिखते के टाइम पे वो देखना है कि वो कैश का है तो मैं कैश कॉलम में ही लिख रही हूँ या बैंक में गलती से तो नहीं चला गया ना, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल 3 कॉलमनर है तो आपका अपना टाइम बच जाता है। नहीं तो वापिस वही सेम आपको फॉर्मेट बैंक अकाउंट में बना और बैंक का ट्रांजेक्शन का, ये आपका बैंक का कैश का सब ट्रांजेक्शन एक ही साथ आ गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश। सी नेक्स्ट डेट इज ऑन 10th of October का क्या हुआ है? नाउ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3,000. Now see students, clearly understand over when I deposit cash into bank or when I withdraw cash from the bank, it is a contra entry. इसमें क्या होता है, मेरा कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है और मेरा बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन माई कैश एंड माई बैंक। उसके लिए उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलो। अभी देखो, जैसे कि कैश डिपॉजिट किया बैंक में, मतलब बैंक में पैसा जमा किया, सो बैंक का डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा और मैंने क्या डिपॉजिट किया, मेरा कैश डिपॉजिट किया, तो मेरा कैश में बैलेंस कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो उधर ऑन 10th of this अभी बैंक में जमा किया, सो बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर, टू कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट में मैंने क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट, उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड। अभी बैंक में पैसा जमा किया तो डेबिट साइड में मैं बैंक कॉलम में लिखूंगी 10,000, बिकॉज क्यों, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो गया उसके लिए। नाउ ऑन सेम एंट्री मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश गया तो क्रेडिट में इफेक्ट हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगी, बाय बैंक, और कैश कॉलम में बिकॉज माई कैश हैज बीन क्रेडिट में, माई कैश हैज बीन रिड्यूस, सो वो कैश कॉलम में मैंने लिखा हुआ है 10,000। सो बैंक अकाउंट में डेबिट में जाएगा 10,000, कैश अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा 10,000, क्योंकि यहां से उठ के यहां गया हुआ है, तो इसका बैलेंस बढ़ गया तो वो डेबिट में गया, इसका बैलेंस कम हो गया तो वो क्रेडिट में हो गया, और उसको कॉन्ट्रा एंट्री करके हम लोग। सेम वे उल्टा एंट्री होता है विड्रॉवल का, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, तो मेरे पास कैश आया तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। सिंपल। गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड कन्वेंस इन कैश ₹500। अभी मैंने क्या पे किया है, कैश पे किया है, मतलब डेफिनेटली क्रेडिट कैश हो जाएगा। क्या पे किया, कन्वेंस, सो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो कैश में क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगी बाय कन्वेंस अकाउंट और कैश कॉलम में जाएगा ₹500। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक ₹400। बाय चेक मिला है, मतलब सीधा मेरा बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में मेरा चला जाएगा। नाउ व्हाट इज आई रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, दिस इज माय इनकम, सो बैंक अकाउंट डेबिट, उधर मैं लिख डालूंगी टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक कॉलम में ₹400। नेक्स्ट आप देख सकते हो, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹20। नाउ बैंक चार्जेस इज माय एक्सपेंस, ऑटोमेटिकली बैंक चार्जेस जो रहता है वो बैंक खुद डेबिट करती रहती है, मतलब बैंक ने डेबिट किया, मतलब मेरा बैंक में से पैसा कम हो गया उतना। सपोज कि मेरा 5,000 बैलेंस था, बैंक लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो अभी मेरा बैलेंस ₹20 इंटरेस्ट चार्ज किया तो ₹20 से कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में इफेक्ट दूंगी, एंड देन आई विल राइट ओवर हियर इज बाय बैंक चार्जेस इन द बैंक कॉलम, आई विल मेंशन ₹20 बिकॉज बैंक में से वो पैसा कम हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट इज अगेन withdrawal from bank for the personal use. Now this is for the personal use, not for the official. Personal use के लिए मतलब मेरा ड्रॉइंग्स है, अभी बैंक में से पैसा विड्रॉ किया मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया तो वो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट ₹600 इन द बैंक कॉलम। नेक्स्ट आप देख सकते हो रिसीव फ्रॉम सी ₹2,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2,500। मिलना चाहिए था 2,500 बट उसकी जगह पे मिला कितना है 2,200, मतलब ₹300 का मैंने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया है। ठीक है, तो कैश में पैसा कितना आया 2,200, तो डेबिट में मैंने 2,200 लिखा है। डिस्काउंट अलाउड मैंने कितने का किया 300, तो डिस्काउंट अलाउड की कॉलम में 300 लिख दिया। किससे पैसा मिला है 2C से, सो 2C, तो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट हुआ, कैश अकाउंट में डेबिट हुआ और 2C हुआ। नाउ दिस वे पूरे मंथ का ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ एट द लास्ट डेट दैट इज ऑन 31st of December मैं मेरा बैलेंस टैली करूंगी। तो आप देख सकते हैं नाउ अभी इसमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का खाली टोटल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर योर नॉमिनल आइटम्स, नॉमिनल अकाउंट आइटम्स, तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जो भी बैलेंस होगा वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बट कैश और बैंक का मेरा बैलेंस टैली होगा। तो जो भी डिफरेंस होगा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है 14,350 का, उसका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, और कैश अकाउंट में टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 5,800। एंड देन यू कैन सी एट द लास्ट मेरा कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम टैली हो रहा है। देखो कैश अकाउंट का टैली हो रहा है 10,500 से, जबकि उसका बैलेंस आ रहा है 5,800। बैंक अकाउंट का कॉलम टैली हो रहा है 15,400 से, जबकि उसका बैलेंस आ रहा है 14,320. So this way you can prepare your triple column cash flow. Thank you.
Now we'll see some examples on ledger accounts also. जर्नल एंट्री का हमने देखा बिकॉज इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. वही जो ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल एंट्री में करते हैं वही ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग हम लोग लेजर अकाउंट में करते हैं. सो वंस फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, देन पोस्ट दिस जर्नल एंट्रीज इनटू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स. तो जो अकाउंट अफेक्ट हुआ है डेबिट में और क्रेडिट में उसका हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे एंड देन वी विल पोस्ट द ट्रांजेक्शन. देखो हमने जर्नल एंट्री में फर्स्ट ट्रांजेक्शन था कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, तो उसका हमने एंट्री क्या पास किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो हियर आई प्रिपेयर्ड अ कैश अकाउंट. आप देख सकते हो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया है टू कैपिटल अकाउंट. नाउ लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, वो डेबिट साइड हो गया, देन डेट पर्टिकुलर्स रुपीज वो क्रेडिट साइड हो गया. जो भी डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड में देते जाओ, जो भी अकाउंट क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है उसका क्रेडिट साइड देखिए. तो इसमें कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश इंट्रोड्यूस्ड हुआ है तो कैश अकाउंट में डेबिट में कर. वही मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में देखो मेरा बैलेंस उधर दिखा रहा है बाय कैश अकाउंट ऑन द सेम डेट. डेट दोनों का सेम रहेगा बिकॉज एक ही ट्रांजेक्शन है. सो कैश में डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. सेकंड एंट्री आप देख सकते हैं पेड 450 टू बी एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹50. अभी यहाँ पे मेरा कैश गया हुआ है, समझ में आ रहा है कितना कैश मेरा गया है, ₹450 गया हुआ है. तो मैंने कैश अकाउंट में देखो क्रेडिट में किया हुआ है बाय बी ₹450. मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनकम. सो डिस्काउंट रिसीव्ड देखो उधर क्रेडिट साइड में ही है बाय बी ₹50. पैसा किसको मिला है, पेड टू मिस्टर बी. सो बी अकाउंट में डेबिट में किया हुआ है ₹500. आप अपना जर्नल एंट्री हमने क्या पास किया था, बी अकाउंट डेबिट 500 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. सो कैश कॉलम कैश अकाउंट में क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट में, बी में डेबिट में. टैली हो गया, 500 डेबिट हुआ, 450 500 क्रेडिट हुआ. Received 2,500 from C and allowed a discount of ₹500. यहाँ पे अगेन मुझे पैसा कितना मिला है 2,500. सो कैश अकाउंट में मैंने देखो डेबिट किया हुआ है 2C 2,500. दूसरा एंट्री पैरेलल एंट्री किया डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹500. डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होगा बिकॉज इट इज माई एक्सपेंस. तो डिस्काउंट अलाउड में भी मैंने लिखा हुआ है 2C ₹500. किसने पे किया है, किसको रिसीव्ड किया, किससे रिसीव हुआ है, मिस्टर सी से. सो ही इज द गिवर. सो सी अकाउंट में मैंने लिखा हुआ है बाय कैश. आप देख सकते हो मिस्टर सी के अकाउंट में ₹3,000. सो कैश अकाउंट डेबिट 2,500 डेबिट में इफेक्ट किया, डिस्काउंट अलाउड 500 डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में गया. देने वाला कौन है, मिस्टर सी. तो सी में क्रेडिट में 3,000 गया. सो 2,500 500 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट अकाउंट टैली. लास्ट वन इज कैश सेल्स ऑफ ₹8,000. कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश में पैसा आया तो देखो डेबिट में मैंने लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट 8,000. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में चला गया मेरा बाय कैश ₹8,000. बट ये मेरा एंट्री पास हो गया, उसका इफेक्ट हो गया लेजर अकाउंट में. बट अभी ये लेजर अकाउंट का आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रहा है. अगर वो इक्वल हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली टैली हो गया. बट इफ इट इज नॉट गेटिंग इक्वल, जो जनरल सिनारियो में वही रहता है, तो उसका जो बैलेंस रहेगा, जैसे हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया बैंक अकाउंट का और कैश अकाउंट का, इसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा. कभी आप देख सकते हैं इधर कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली नहीं हो रहा है, उसका डिफरेंस आ रहा है ₹20,050 का. कैसे, वो कैसे पता चला मुझे, तो डेबिट साइड का टोटल लूंगी, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल लेस करूंगी, वट एवर द डिफरेंस दैट विल बी द बैलेंस. सो देखो डेबिट साइड का टोटल मेरा है 20,500, उसमें से क्रेडिट में मेरा खाली ₹450 लेस हुआ है. सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ ₹20,050. तो वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड. आप बोलोगे डिस्काउंट रिसीव्ड में बैलेंस नहीं लिखा है, नहीं लिखूंगी. क्यों, बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज माई इनकम अकाउंट, दैट इज माई नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंस नहीं होता है, उसका जो बैलेंस रहता है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. समझ में आ रहा है. अभी देखो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा है 50, वो ₹50 में किधर ट्रांसफर करूंगी, P&L अकाउंट. तो उसको टैली करने के लिए मैंने उधर डेबिट साइड में लिख दिया टू P&L अकाउंट ₹50. तो अभी 50-50 से मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड टैली हो गया. नेक्स्ट वाला है मिस्टर बी अकाउंट. मिस्टर बी इज माई पर्सनल अकाउंट. उसमें डेबिट में है ₹500, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 500 करूंगी, बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करूंगी और अकाउंट टैली हो जाएगा. नेक्स्ट इज माई कैपिटल अकाउंट. उसमें भी आप देख रहे हो बाय कैश करके 10,000 का एंट्री है. जो भी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा. तो आप देख सकते हैं उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि वो मेरा टैली 10,000 से कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड. नाउ डिस्काउंट अलाउड अगेन इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो वो टैली नहीं होगा, उसका बैलेंस नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, बट जो भी बैलेंस रहेगा वो P&L में ट्रांसफर होगा. तो बाय P&L करके मैंने ₹500 ट्रांसफर किए.
नेक्स्ट इज अगेन मिस्टर सी अकाउंट, दैट इज माय पर्सनल अकाउंट। उसमें आप देख सकते हो बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड करके 3000 क्रेडिट में पड़ा है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके आप डेबिट में इफेक्ट डाल दो और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो और अकाउंट 3000 से टैली हो जाएगा। द लास्ट वन इज माय सेल्स अकाउंट, जो कैश टू सेल्स हुआ था, मेरा कैश सेल्स का एंट्री है, तो टू सेल्स में मेरा बाय कैश करके लिखा हुआ है 8000। नाउ कैश सेल्स जो होता है वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट होता है, तो उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगी, टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसका भी बैलेंस नहीं होगा बिकॉज सेल्स मतलब मेरा इनकम ही है, डायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर। उसके लिए मैंने कहाँ पे ट्रांसफर किया उसको, टू ट्रेडिंग अकाउंट ₹8000, और वैसे करके फिर लास्ट में मैंने बैलेंस टैली किया। सो दिस वे हाउ यू pass the journal entries. From journal entries, post this transaction into ledger account, and then at the last ledger account में सब ट्रांजेक्शन पोस्टिंग होने के बाद उसको ट्रांसफर करना रहेगा या उसका बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन करना। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसका बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर होगा, उसमें भी इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएनएल, डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है तो उसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। इन दिस वे यू कैन टोटल योर लेजर अकाउंट्स ऑल्सो। अंडरस्टूड? थैंक यू।